لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ میں ہوں وارث حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 28واں ولاگ اربعین واک 2026 لکھنؤ کا چہلم۔ آج کا یہ سفر صرف پیدل چلنے کا سفر نہیں ہے بلکہ محبت، عقیدت اور وفاداری کا سفر ہے۔ ہر قدم پر یا حسین کی صدا ہے، ہر دل میں کربلا کی یاد بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روحانی سفر۔ دوستو، جس طرح عراق میں ہر سال لاکھوں اور کروڑوں زائرین نجف سے کربلا تک پیدل مشی کرتے ہوئے جاتے ہیں، بالکل اسی محبت اور یاد میں لکھنؤ میں بھی عزادار پیدل مشی کرتے ہوئے تال کٹورے کی کربلا تک پہنچتے ہیں۔ کوئی بخشی کا تالاب سے پیدل سفر شروع کرتا ہے، کوئی شاہ نجف حضرت گنج سے، کوئی دوبگے سے اور کوئی لکھنؤ کے دوسرے علاقوں سے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھنا۔ صبح سے لے کر رات تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں، کہیں نوحہ، کہیں ماتم، کہیں سبیل، کہیں نیاز۔ ہر قدم پر لوگ زائرین کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ لکھنؤ کے علاوہ اتر پردیش کے کئی شہروں سے اور دوسری ریاستوں سے بھی عزادار اور انجمن اس مشی میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کسی ایک شہر یا ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے مومنین کے دلوں میں زندہ ہے۔ اربعین کا مطلب ہے 40واں۔ یہ وہی دن ہے جب کربلا کے واقعے کے 40 دن مکمل ہوتے ہیں۔ اسی دن روایتوں کے مطابق اہل بیت کا قافلہ دوبارہ کربلا پہنچتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لاش اقدس دفنایا جاتا ہے اور ان کی مزار تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں صرف غم یاد نہیں دلاتا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے حق کے لیے اپنی جان دی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، مگر ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج بھی دنیا میں جب حق اور انصاف کی بات ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ صبر کا نام ہے، یہ وفا کا نام ہے، یہ انصاف کا نام ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر حق بچانا ہو تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے آج بھی ہر عزادار کے دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا اور جب حضرت عباس علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وفا یاد آتی ہے۔ حضرت عباس صرف ایک بہادر سپاہی نہیں تھے، وہ وفاداری کی مثال تھے۔ جب بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے فرات کی طرف گئے تو اپنی پیاس پر بچوں کی پیاس کو ترجیح دی، مشک بھر لی لیکن خود پانی نہ پیا۔ اسی لیے آج بھی جب علم عباس بلند ہوتا ہے تو ہر عزادار اس سے وفا، ہمت اور قربانی کی نشانی سمجھ کر ادب سے سلام کرتا ہے۔ اس اربعین واک میں بھی ہر طرف علم عباس لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہر پرچم یہی پیغام دے رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ یا عباس یا عباس یا سکینہ یا عباس یا عباس یا عباس یا سکینہ یا عباس۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اس سفر کی۔ اس روحانی سفر میں میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے۔
मेरे अकारिब भी मौजूद थे और मेरे घर वाले भी इस मशी का हिस्सा बने। हम सब ने मिलकर ये सफर तय किया। रास्ते भर सबीलों पर खिदमत करने वाले मोमिनीन को देखा। हर तरफ लोग बिना किसी भेदभाव के ज़ायरीन की खिदमत कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई चाय, कोई शरबत, कोई खाना, और सबके चेहरों पर सिर्फ एक ही खुशी थी कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खिदमत का मौका मिला। ये मंजर वाकई देखने लायक था। हर तरफ मोहब्बत, हर तरफ अखलाक, हर तरफ या हुसैन की सदा। अगर आप कभी लखनऊ के 40 वॉक का हिस्सा नहीं बने हैं तो कम से कम एक बार जरूर बनिए। ये सिर्फ एक पैदल सफर नहीं, ये दिल को बदलने वाला सफर है। ये इंसान को करबला के पैगाम के और करीब ले आता है। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब करबला के बाद सफर याद आता है तो दिल और भी गमगीन हो जाता है। सोचिए, एक बहन जिसने अपने भाई को शहीद होते देखा, अपने जवान भतीजों को शहीद होते देखा, अपने बच्चों को शहीद होते देखा, अपने घर के अफराद को एक एक करके जमीने करबला पर गिरते हुए देखा। वो थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन इतने बड़े गम के बावजूद उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। दरबार कूफा हो या दरबार शाम, हर जगह हक की आवाज बुलंद की। उनके खुतबों ने यजीद की हुकूमत की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो शायद करबला का पैगाम इस तरह दुनिया तक ना पहुंच पाता। आज हम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं उसमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सब्र और हिम्मत का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह उनके मकाम को और बुलंद फरमाए। भाई का चेहल्लुम, भाई का चेहल्लुम करने आई है ज़ैनब। करबला के वाक़ये के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर भी बहुत सख्त मुसीबतें आईं। रिवायतों के मुताबिक बीमारी की हालत के बावजूद उन्हें अहले बैत के काफिले के साथ कैद की सूरत में कूफा और फिर शाम ले जाया गया। हाथों और गर्दन में जंजीरें डाली गईं और हर कदम पर दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन इतनी सख्तियों के बावजूद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सब्र, इबादत और अल्लाह पर भरोसे का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अखलाक, दुआओं और हक की गुफ्तगू के जरिए करबला के पैगाम को जिंदा रखा। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र और हक पर कायम रहना ही मोमिन की असली पहचान है। जब हम 40 वॉक में कदम बढ़ाते हैं तो हमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का वो दर्द भरा सफर भी याद आता है। एक ऐसा सफर जिसमें कैद थी, तकलीफ थी, लेकिन अल्लाह की रजा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को जिंदा रखने का अज़्म भी था। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी थी। करबला में उन पर बहुत सख्त मसाइब आए। करबला में पानी बंद कर दिया गया था। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और दूसरे बच्चे 3 दिन तक प्यास से तड़पते रहे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लाने गए लेकिन वो शहीद हो गए। इसके बाद सकीना सलामुल्लाह अलैहा की पानी की उम्मीद भी टूट गई। आशूरा के दिन उन्होंने अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चचा, भाई और घर के दीगर अफराद की शहादत देखी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुश्मनों ने खैमों को आग लगा दी। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और दूसरे बच्चे घबराकर इधर उधर भागते रहे। इसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम को कैदी बनाकर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। सफर में उन्हें बहुत तकलीफ और सख्तियां उठानी पड़ी। रिवायतों के मुताबिक शाम के जिंदान में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा
अपने वालिद को याद करके बहुत रोया करती थी। मशहूर रिवायत के मुताबिक जब उनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक लाया गया तो गम की शिद्दत से उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई और बाबा का सर मिलते ही उनका इंतकाल हो गया। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र आता है तो हर आंख नम हो जाती है। एक मासूम बच्ची जिसने करबला की प्यास देखी, अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी मर्तबा देखा, उनकी याद में रोते रोते उनकी जिंदगी का सफर वहीं मुकम्मल हुआ। सकीना है सकीना, सकीना है सकीना, सकीना है सकीना। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लखनऊ के इस रूहानी अरबईन वॉक को देख सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले मुहर्रम, सफर और अहले बैत से मुताल्लिक तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हुसैन का गम सदा रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। हुसैन का गम सदा रहेगा, सदा रहेगा, सदा रहेगा। आज लखनऊ की सरजमीन पर जिसने अरबईन के इस चहल्लुम में अपनी हाजिरी दी है, जिसने लब्बैक या हुसैन कहा है, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में दो आंसू बहाए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन सब के नाम अपने ज़ायरीन में लिख दें। या मौला, आज हम लखनऊ की गलियों में चलकर आपका गम मना रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आए कि हमें नजफ अशरफ से करबलाए मुअल्ला तक अरबईन के पैदल सफर की सादत नसीब हो। हम भी उस काफिले का हिस्सा बन जाएं जहां हर जुबान पर लब्बैक या हुसैन हो, हर कदम इबादत हो, हर आंसू मकबूल हो और हर सांस आपकी मोहब्बत में गुजरे। आओ सब मिलकर दिल से दुआ करें, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें नजफ से करबला तक अरबईन के पैदल सफर की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें दुनिया से रुखसत करना तो अपनी और अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ करना। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। लब्बैक या हुसैन।